हाय एवरीबॉडी, नमस्कार, जय हिंद। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे साइलेंट वॉरियर से मिल रही हूँ जो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, ऑलराउंडर है। ये सिर्फ कहने का नहीं है, ये सच में है। बिकॉज ऑफ द कैमरा बहुत बातें होती हैं जिससे मुझे ये पता लगा कि मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। कम लेट्स मीट हर। गुड आफ्टरनून मिसेस नेगी। वेलकम टू माई पॉडकास्ट साइलेंट वॉरियर। Good afternoon, Bhavna, and thank you for having me on your podcast. It's a privilege to be here. इट्स एन ऑनर सीरियसली। मुझे आने से पहले लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम मिलने वाली हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बात करूँगी और आप कैसे मुझसे बात करोगे, बट द वे यू मेड मी कंफर्टेबल, आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। Maybe that's how we are groomed in our fraternity of olive greens. यस, So करेक्ट। it's the commodore that शुरू से हम first meeting से we become a family. या So करेक्ट मिसेस नेगी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। hi everyone. Good afternoon. Namaste. I am Surbhi. So by now, जिस podcast पे मैं बैठी हूँ उससे आप समझ गए होंगे that I'm a proud Fauji wife and I'm a proud mother of two amazing boys who make me busy, keep me busy, and always keep me on my toes. On professional ground, I am a counselor in Army Public School, and I have done my master's in psychology. I have been teaching PRT for quite some time, but COVID taught me that there is a different area wherein I need to work, and that is when I pursued my master's, and now I am a certified counseling psychologist as well. I do freelancing as well, and I am here in school dealing with the minds, creative minds, who I think academically अगर हम उनको उस stage पे deal कर सके तो we are going to raise better human beings in the या coming future. करेक्ट। And other than that, I am an published author with a poetry book, bilingual poetry book, Hindi English दोनों में. वाओ। And recently four of my poetries got published in an anthology. So एक कंपनी है जिसकी किताब छपती है, काव्य क्षितिज, ओके, उसमें 15 authors contributed जिसमें से एक मैं भी थी. दैट्स नाइस। So that is all about. Baki we can go with the flow. As you have told in the introduction only that you have published a book, you are an author, so I guess this is the book, right? Yes, this is the By book. the name Surbhi Rakshita, Rainbow of Emotions. हाँ जी. So इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसमें जो पोएम्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि इनमें से आपकी जो फेवरेट वन है वो आप हमें बोल के सुनाएंगे। डेफिनेटली बहुत हैं, बट देर फ्यू, दो तीन हैं जो बहुत क्लोज हैं. या सो आई विल, एंड मैं उसके पीछे की कहानी भी बताऊंगी, बट आई डोंट वांट टू गो डीपर इन इट राइट नाउ. सो हम धीरे धीरे करेक्ट जाएंगे. करेक्ट। ओके मिसेस ने कि आप मैरिज से पहले सिविल बैकग्राउंड से थे या डिफेंस बैकग्राउंड से? I come from a proper civil background, though ओके। we knew my distant relatives who were in army. But there's a very funny incident I'll tell you. I cannot miss that. So all of them were from the ranks. ओके। Till सुबेदार मेजर मेरे एक चाचा थे. So और बॉर्डर मूवी भी ऐसी आ गई तो मुझे लगता था आई कैन बी किल्ड फॉर दैट. बट मुझे नाइस। लगता था एयरफोर्स एंड नेवी इज ऑल अबाउट ऑफिसर कार्डर एंड ऑल. एंड आर्मी में बॉर्डर मूवी वाला होता है कि ये हमेशा ऑन ग्राउंड बेचारे लड़ाई लड़ते रहते हैं और उसमें रहते हैं. until I got married and I ओके। got to know कि okay यहाँ भी होता है ये different वो. अच्छा। So before marriage, that's my thorough civilian background, all in teaching professions, and I come from Bihar, so it was more of a government job and all ओह, that. ओके। So Fauj came as a surprise to me. So what major difference you felt after getting married in civil life and in army life? See, initial was Bhavna. Initial was adjustment. Yeah. We have been in civil. We are always surrounded with people. चाहे घर हो, बाहर हो, स्कूल हो, एक तो आपका रिलेशनशिप किसी भी चीज़ में, दोस्त हो, सब कुछ में, इट्स अ लॉन्ग रिलेशनशिप. यहाँ जब तक आप एडजस्ट होते हो, इट्स टाइम टू मूव एंड पैक. Yeah. पैक एंड मूव. सो इट्स लाइक कि यार अब अभी तक तो हम अब दोस्त बन रहे थे, अब हम समझ रहे थे, अब हम शहर को जान रहे थे. सो इनिशियल ईयर्स वाज दिस शॉक टू मी कि कैसे करेंगे, क्या होगा. अब तो दोस्त बने थे एंड हाउ, बिकॉज
आप कितने भी क्लोज हो, दिस लॉन्ग डिस्टेंस थिंग आप रोज रोज बात नहीं कर सकते नहीं हो। कर पाते। अब तो फिर भी व्हाट्सएप पे, व्हेन आई गॉट मैरिड तब तो वो भी नहीं था। हम्म। सो इट यूज टू बिकम वेरी, एक वो था, आई विल नॉट से कि अकेले रहना और लड़ना वॉज अ बिग ऑफ थिंग, बिकॉज आई हैव बीन रेज्ड बाय माय ग्रैंडमदर हु वाज अ वेरी स्ट्रांग वुमन। सो लिविंग अलोन वाज नॉट समथिंग विच स्कैर्ड मी। लोगों से दूर रहना और बार बार रिश्ते बदलना, दोस्त बदलना, शहर बदलना, उसमें बहुत डिफरेंस लगा, क्योंकि हमने जिंदगी का एक मेजर चंक एक जगह गुजारा। सो दैट वाज माय बिगेस्ट ट्रांजिशन। फिर ग्रेजुअली आदत हो गई। आदत मतलब यही है ना कि हम एडजस्ट करते करते फिर वो हैबिट बन जाती है, तो फिर अजीब नहीं लगता। अब हम बहुत लोगों के बीच नहीं रह पाते। करेक्ट। हाँ, ये मैंने भी नोट करा है कि आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आपको शायद अकेलापन ही अच्छा लगने लग जाता है। यू डोंट लाइक टू बी इन क्राउड और समथिंग। आप खुद को एंजॉय करते हो, अब खुद ये की फौजी कंपनी। घर हमारा घर हो जाए, फिर मम्मी का घर, इन लॉज का घर, सब अलग घर है। हमारा ये 2 बाई 2 का कमरा ही है जो हम सेट करते हैं। करेक्ट, एंड द सुकून इज हियर ओनली। यस, डेफिनेटली। शादी से पहले आप जॉब करते थे? हाँ जी, आई वाज इन होटल्स। Okay. So I have worked with Radisson Hotel Mahipalpur and Crown Plaza Gurgaon, and it was in Radisson where I met my husband. तो हम वहीं मिले थे, because पहाड़ी और बिहारी का otherwise ये rare combination. rare combination. So I was into sales and marketing there, and then फौजी से शादी हो गई, फिर B.Ed entity. B.Ed is compulsory for कंपल्सरी, फौजी क्योंकि wives. यस, बिकॉज आप, क्योंकि एक स्कूल और हॉस्पिटल दो चीज है जो आपको हर जगह मिलेगा। सो वुमेन हु वांट टू डू समथिंग, वर्क, कीप बिजी, ये फिर द ओनली ऑप्शन व्हिच कम्स इज दिस। दो आई रियलाइज कि दैट इज समथिंग, इट वाज अ गुड डिसीजन, बट यस, आई वाज वर्किंग बिफोर दैट, एंड वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था। तो मैरिज के बाद आपने अपना वर्क कंटिन्यू रखा? नो, आई लेफ्ट इमीडिएटली, बिकॉज जब हमारी शादी हुई, so he was at that time posted in Anantnag. So it was decided like कि फिर फैमिली लाइफ बहुत हैम्पर हो जाती है, बिकॉज सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ जॉब विच रिक्वायर्स यू, यू नो, रात के लेट तक पार्टी हो रही है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड इनिशियल ईयर ऑफ एडजस्टमेंट्स में यू हैव टू मेक अ चॉइस, विच वी मेक बाय आवर ओन, दैट थिंग हम अपने आप से ही बनाते हैं। एंड ठीक है, इट वॉज अ गुड डिसीजन, बिकॉज कोई दूर बैठा है, वो दिन के किसी प्रहर आपको कॉल करे और आप रिसीव ना कर पाओ। फिर इन सब गिल्ट से हटने के लिए, देन द डे वी गॉट मैरिड, आई लेफ्ट माय जॉब 1 month prior to that. Then you did B.Ed and I did B.Ed नहीं, I मेरी graduation बीच में, because I started working in hotels, I joined when I was in second year. तो मेरी पढ़ाई रुक गई थी, थर्ड ईयर मेरा हुआ ही नहीं, शादी हो गई, moved to SF in श्रीनगर। मेरा पहला, श्रीनगर से भी पहले बीबी कैंट के भी पहले सतवारी, वी वर इन जम्मू, और पहला ही मेरा एक्सपोजर वाज इन SF। सो मैं बहुत परेशान लेने लगी, देन आई रीस्टार्टेड माय ग्रेजुएशन। सो अगर आप कभी मेरी डिग्रीज देखोगे तो देयर इज अ गैप ऑफ 8 years फ्रॉम 12th टू ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने फिर शुरू किया। मीनवाइल आई कंसीव्ड, तो बच्चे के साथ मैंने फाइनल टर्म्स के एग्जाम दिए हैं। तो फर्स्ट ग्रेजुएशन, देन B.Ed, तब एनटीटी होता था, एनटीटी भी करी, मॉन्टेसरी भी करा, फिर धीरे 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 जब जब जो एजुकेशन सेक्टर में आता रहा करते चले गए। So I mean it was a huge gap, then you started working as a teacher. Yes, I started working as a teacher in 2014. बट सिंस मुझे कभी बैठना पसंद नहीं था, माई ग्रैंड मदर यूज टू से कि चाहे तुम किसी करोड़पति के भी घर में जाओ, तुम्हारे 2000 पर अपने होने चाहिए। सो आई यूज टू वर्क एज अ कंटेंट राइटर। कश्मीर में भी ये ऑप्शन मिलता था, एंड आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम आई यूज टू गेट 4-5,000 विद कंटेंट राइटिंग। सो वो बिकॉज उसमें कुछ डिग्री की जरूरत नहीं है, एंड इट वाज अ गुड ऑप्शन एट दैट टाइम। आई वाज एट होम, आई वाज इन अ रिमोट एरिया, सो तब वो करते थे। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर फुल फ्लेज इन 2014। उसके पहले कभी मैंने VTC में भी काम किया एज अ इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज, छोटे छोटे जहाँ मौके मिलते गए करती चली गई, फुल फ्लेज्ड 14 से। So did you miss your previous job? जैसे वो आपने अपनी चॉइस से किया होगा, बट B.Ed आपको एक तरह से करनी पड़ी बिकॉज आपको फौजी से शादी हुई, तो B.Ed इज द ओनली ऑप्शन। तो
हैव यू एवर मिस्ड कि वो वाला जॉब मुझे पसंद था, वही कंटिन्यू करती? सी अगर मैं ऑनेस्ट आंसर बोलूँ भावना, तो टिल 2019 मैंने कभी मिस नहीं किया. ओके, सो 19 वी केम बैक टू दिल्ली. ओके. और दिल्ली आके जब मैं अपने दोस्तों से मिली एंड आई स्टार्टेड सीइंग दी जीरोज इन देयर सैलरी. और मैं जम्मू सतवारी से, आई रिमेम्बर, मैं 14,500 की नौकरी छोड़ के आई थी एज अ प्राइमरी टीचर. सो जब मैंने उनकी तनख्वाह सुनी एंड व्हेन वी स्टार्टेड मीटिंग एंड व्हेन वी स्टार्टेड सीइंग, थोड़ा सा लगा. बट देन फिर वो रियलाइज हुआ कि अब शायद उस तरह से हम जी नहीं पाएंगे कि रात के 9 बजे तक बाहर हैं, कभी भी आपको बैग उठा के दूसरे शहर जाना. बिकॉज हमें अपना ये ककून शेल्फ इतना पसंद आने लगता है ना, बच्चे हैं, सब कुछ है. दो दीज डेज आई एम सो ग्लैड एंड आई फील सो प्राउड कि जो अब यंगर जनरेशन आ रही है फौज में. लाइक आई गॉट मैरिड इन 2008. अब जो लॉट आ रहा है, दे आर सो क्लियर एंड सो नाइस. बाद में गिल्ट लेने से अच्छा आप शुरू से कंडीशंस क्लियर रखो. एंड व्हाई नॉट, एवरीबडी हैज वर्कड हार्ड, सो व्हाई नॉट. बट वो एक मोमेंटरी आया था. फिर उस मोमेंट में मैंने, यू वोंट बिलीव, आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन MBA थ्रू MIT. आई पेड अ गुड अमाउंट फॉर दैट कि मुझे लगा मैं वापस कॉर्पोरेट में जाऊंगी. मैं जाने भी वाली थी, मैं चली भी गई. 3 महीने में मेरी बस हो गई, क्योंकि 6 बजे के बाद घर आके दिन नहीं होता. बच्चा था, छोटा था. माई यंगर वन वॉज वेरी स्मॉल, though my elder one was very supportive at that time. Okay. He used to take care of everything and he always used to say कि आप करो मम्मा. But then खुद ही नहीं हो पाया. So then we realized कि teaching is something which gives me happiness also. That is, now as a counselor I feel this was something which was missing. So I guess teaching is the best option yes, for the ladies who want to get married to Fauji wife or about to get married. Yes, in fact, as if we, like I said earlier, doctor, dentist, teacher. Yeah. ये आप किसी भी रिमोट एरिया में जाओगे, इन तीनों को नौकरी मिल जाएगी. क्या अभी हर फौजी वाइफ का एक मैंने कॉमन सुना है कि भाई प्रेगनेंसी पीरियड वाज लाइक हस्बैंड वाज नॉट देयर. डिलीवरी में हस्बैंड है ही नहीं, है तो बस 2 दिन के लिए आए हैं, शक्ल दिखाई है और वो वापस चले गए. आपका एक्सपीरियंस कैसा था? Oh, you would not want to know. So मेरा, like I said, कि हमारा फर्स्ट SF जम्मू सतवारी था. So a person, and I was very young जब मेरी शादी हो गई थी. So he हमें सेटल किया and he had to go to field area. So he went. पता चला मुझे that I've conceived and my first 3 months were hell. मतलब इतना nausea, इतनी vomiting, everything. I couldn't eat. मैं पानी भी नहीं पी पाती थी. बट लाइक जो कहते हैं ना, फौज इज़ अ फैमिली एंड इट्स अ ब्लेसिंग. सो मेरी एक नेबर होती थी एंड शी, हम बस हाय हेलो करते थे. एंड एक दिन वो ऊपर आई कि आप 2 दिन से दिखे नहीं हो. एंड मैं बेड पे पड़ी हुई थी और मैं रोने लगी, जैसे बच्चे होते हैं ना कि मुझे भूख लग रही है पर मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ. और मुझे आज भी याद है कि उसने आम की चटनी, कच्चे आम की, और चावल लेकर आई और मैंने ऐसे खाया था बिकॉज मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं चढ़ता था. सो आफ्टर इनिशियल 3 months फिर चेकअप वेकअप होके पता चला कि ओके, नाउ आई एम ओके. सो जहाँ मेरे हस्बैंड थे उन्होंने वहाँ परमिशन ली और जैसे तैसे एक कमरे का क्वार्टर जुगाड़ किया बिकॉज इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी. एंड कोई आ नहीं सकता था बिकॉज मेरे इन लॉज भी फौज से हैं. तो पापा वो सर्विंग एट दैट टाइम. तो वो था कि उनके थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे थे कि मम्मी नहीं आ सकती थी. सो वी वेंट देयर. हम 500 के मीटर के डिस्टेंस पे थे. बट मेरे हस्बैंड अपने जो उनका अलॉटेड रूम था उसमें सोते थे और मैं उस अकेले कमरे में सोती थी रात में. जैसे तैसे चल रहा था. ड्यूरिंग माई 7th month पोस्टिंग आ गई टू मेजर एक्सट्रीम एरिया. वो ऐसी जगह जहाँ फ़ोन भी ना लगे. सो ही वेंट एंड आई रिमेंबर ही केम फॉर 31st कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँगा. और मेरी डिलीवरी में 1 month का टाइम था. सो इसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करके चला जाऊँगा. वी वर इन कश्मीर एट दैट टाइम और ये आगे थे हस्बैंड मेरे. सो ही सेड कि सेलिब्रेट करके चला जाऊँगा और तब छुट्टी लेके आऊँगा. वो पैटर्निटी लीव वाला कॉन्सेप्ट तब बहुत चल रहा था कि आपको मिल जाएगी अगर ज़रूरत हो तो. एंड वी वर ब्लेस्ड टू हैव सम ब्यूटिफुल ह्यूमंस एज ए CEOs. जो कहते हैं ना, भगवान एक तरफ से रास्ता बंद करता है तो 10 तरफ से खोल देते हैं. तो वो अच्छे, बहुत अच्छे लोग थे. एंड 31st हमने मनाया है. एंड 3rd आफ्टरनून से मुझे पेन शुरू हुआ. एंड
डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ फॉल्स पेन, तो फोर्थ को हम वापस आ गए। फिर फोर्थ दिन में डॉक्टर ने बोला कि नहीं, फॉल्स पेन नहीं है, अगर कंटिन्यू हो रहा है आप एडमिट कर दीजिए। सो आई वॉज एडमिटेड टू द बेस हॉस्पिटल कश्मीर वाला। एंड मेरा ना पेल्विक बोन कम है, सो दे हैड टू इंड्यूस। सो व्हेन दे इंड्यूस्ड, उसके बाद भी द बेबी वाज नॉट एबल टू मूव। बट एज यू वुड नो, और कुछ लोग जानते होंगे या कुछ नहीं, बट आर्मी हॉस्पिटल्स में दे डोंट अलाउ हस्बैंड्स इनसाइड, Yeah. अनलाइक सिविल। हम्म। आपको सारी लड़ाई अकेले लड़नी है। वो अकेले। बेचारा बाहर बैठ के भी क्या करे, हम्म। बिकॉज वो अंदर नहीं आने देंगे नो मैटर व्हाट। Okay. सो पूरा पेन हो रहा है, सब है। एवरी 2 hours डॉक्टर वॉज कमिंग गोइंग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी एट अ प्लेस लाइक प्रॉपर श्रीनगर। सो ठंड कड़ाके की, और मैं जितने लोग एडमिट थे शायद उनमें सबसे यंग मैं थी। तो वो डॉक्टर भी परेशान हो रही थी कि अब क्या करना है क्या नहीं। सो ऑलमोस्ट अराउंड दे हैड टू कट माई वाटर बैग फ्रॉम फोर्सेप्स जस्ट टू लेट द बेबी स्लाइड अ बिट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस इतने बढ़ गए थे एंड वो ऑपरेट इमिडिएटली नहीं करना चाह रहे थे। सो आफ्टर 18 hours ऑफ पेन, जब सब ने थक हार कर ओटी तैयार कर लिया था कि सुबह 4 बजे ओटी रेडी है, अब कुछ नहीं हो, बिकॉज आई वॉज गिविंग अप, मैं फेंट हो रही थी, बॉडी ने जवाब दे दिया था। हस्बैंड बेचारा बाहर ठंड में, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सो फाइनली अराउंड 5:15 my elder one came in this world. And the funniest part was, instead of asking anything, मैंने उस जो MNS थी वहाँ पे, फौजी हॉस्पिटल्स में नर्सेस को MNS कहते हैं, यू मस्ट बी अवेयर। सो MNS थी एंड शी सेड कि मैम, मैंने कहा आप जल्दी से मेरे हस्बैंड को कॉल करके अब बोलो कि बेबी इज बॉर्न एंड ही कैन कम एंड मीट मी। सो दैट वाज वन पार्ट। बट देन इन अ वे मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज ये छुट्टी पे ही था। By chance. So my elder one is 25 days ahead of his delivery date. But इसको फिर continuity में मिल गई छुट्टी, so those 40 days were good enough. And we actually, he was like the best partner, father, nanny, you call him anything at that Wow. moment. Wow. It was a good, and because of snow, nobody, कोई आ नहीं पाया। तो वो भी मेरे लिए, मतलब आई कैन बी जस्ट जज्ड फॉर दैट, बट मैं कहूँगी मेरे लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। बिकॉज यू नो विथ हस्बैंड आप कभी भी सो सकते हो, कभी भी उठ सकते हो, यू कैन लीव योर बेबी विद दैट राइट कि आप तुम देख लोगे, तुम्हारा भी बच्चा है। सो आई वॉज रियली मेंटली वेरी टेकन केयर ऑफ एंड इमोशनली ड्यूरिंग दैट टाइम। वाओ, आई थिंक ये चीज़ बहुत लोगों को फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज जो प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड होता है, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोला जाता है, 90% लेडीज़ को वो हो जाता है, और हस्बैंड्स को वो चीज़ नहीं समझ आती है। तो दिस इज़ वेरी गुड कि आपके हस्बैंड ने वो चीज़ समझी और आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे जो एक लेडी का हाल होता है, नोबडी कैन इमेजिन कि वो किस मेंटल ट्रॉमा से। शी इज़ हैप्पी कि उसका बच्चा आ गया इस दुनिया में, वो उसको टेक केयर भी कर रही है, लेकिन उस टाइम पे आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं रहते, आपको भी कोई टेक केयर करने के लिए चाहिए होता है। और जो मुझे लगता है, अदर देन योर ओन मदर, नो मैटर हाउ गुड योर इन लॉज आर, एंड बट अपना एक जो वो होता है ना, अपना एक कंफर्ट जोन, आप रात में 1 बजे उठ के अपनी मदर इन लॉ को नहीं बोल सकते कि यार मुझे नींद आ रहा है मम्मी आप ये पकड़ लो। करेक्ट। शी वुड नॉट माइंड, बट आप नहीं कह पाओगे, है ना। बट ये आप अपनी मदर के अलावा अपने हस्बैंड को पूरे हक से बोल सकते हो कि मुझे दिन में 3 बजे नींद आ रही है, मुझे 1 घंटे डिस्टर्ब मत करो, एंड बीइंग द फादर ही विल बी वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कई बार हम लेडीज ही सेल्फ कॉन्शियस होके चीजें बोल नहीं पाते हैं। करेक्ट। और बीइंग मैन उनको समझ नहीं आ रहा है, लाइक वी हैव टू टेल देम ना कि मुझे नींद आ रही है, सोने दो। आपको किसने बोला है वॉरियर वो वाला बनने के लिए कि नहीं बच्चा भी मैं ही संभालूंगी, खाना भी मैं ही बनाने दो यार, उसको चाय देखने दो बच्चे को। एंड वो जो बॉन्ड उस टाइम बनता है ना, दोज इनिशियल टाइम, जो हम टेक्निकली कई बार अपने हस्बैंड से छीन लेते हैं, वो मम्मी के हाथ में है, बहन के हाथ में है, बुआ के हाथ में है, दादी के हाथ में, हम सबको देते हैं। एंड बाय द टाइम इनका आता है, बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, है ना। सो मेरे वो 45 days वर एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि कोई नहीं आ पाया, बट मी एंड माई चाइल्ड हैड द बेस्ट पर्सन अराउंड। वाओ। आपने बच्चों की अपब्रिंगिंग किस तरह, यू हैव 2 boys, राइट। और क्या एज गैप बच्चों का है आपका?
To be precise, 6 year 9 months. Okay. One is January born and one is September born. Okay. And both of them have been raised in SF mostly. अकेले मतलब I आपने was ही alone. किया? हाँ जी, मैं अकेले थी. जब मेरा बड़ा वाला पापा के साथ पहली बार आया तो वो 2 साल का उसका सेकंड बर्थडे मना था, तो वो समझने वाली उसमें आ गया था. एंड सेम हैपेंड छोटे वाले के साथ कि वो हुआ था. एंड देन हस्बैंड की अगेन एक्सट्रीम पोस्ट आ गई थी, पोस्टिंग. तो जब हम वापस साथ आए तो उसका थर्ड बर्थडे मना था. सो जो इनिशियल स्ट्रगल्स हैं बच्चे का, कभी वो होता है ना कॉलिकल पेन है, ये सब. तो मुझे याद है एक बार माय एल्डर वन ही वो पूरी रात रो रहा था. ही वाज 1 year ऐसा. और मैं समझ ही नहीं पाऊँ कि क्या कर रहा है. एंड बीबी कैंट की वो एसएफ में आप अकेले सुनसान, दिल्ली वगैरह में तो आप एक कॉल करो सब हो जाता है. और मैंने रात में 1 बजे डर के फ़ोन किया एमएच में कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए. तब मैं ड्राइव बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं करती थी. और हस्बैंड ऐसी जगह पे था कि मुझे लगा मैं फ़ोन भी करूँगी, बेचारा जब तक आएगा तब तक तो दिन हो जाएगी. सो आई रिमेम्बर कि मैं डरते हारते, और दो इट्स अ सिक्योर, बट रात में आप एक बच्चे को लेके 2 बजे रात में पहुंच रहे हो, सुनसान हॉस्पिटल, सब खाली. एंड मैं ना ऐसे हे भगवान बच्चा ठीक हो जाए, मैं भी ठीक ठाक निकल जाऊं टाइप. और बच्चे ऐसे होते हैं ना, हमारी इतनी इंसल्ट करते हैं, वो हॉस्पिटल पहुंचते ही ठीक हो गया. एंड ही वाज प्लेइंग एंड डॉक्टर इज लाइक कि मैम आप तो इतना पैनिक में आए, आप ज्यादा रो रहे हो, उसको क्या हो गया. सो तब मुझे पता चला कि अच्छा कॉलिकल पेन भी कोई चीज होती है और हमें इसकी भी दवाइयाँ. तभी शायद वो जो बुजुर्ग पहले साथ होते थे वो देसी नुस्खे बता देसी देते. तो नुस्खे वो क्या सब थे? हमें खुद ढूंढना पड़ता है. हम खुद ही मालिश वाली बन जाते हैं, हम खुद ही देसी डॉक्टर बन जाते हैं. वही ना, ऑलराउंडर हो जाते हैं. डेफिनेटली प्रॉपर. सब सीखते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि नाउ वी आर द परफेक्ट वन. हमसे किसी भी तरह की एडवाइस ले कोई लो. भी चीज, आप वी आर दी डॉक्टर्स, वी आर दी टीचर्स, वी आर द मूवर्स एंड पैकर्स सब आल्सो. कुछ सब कुछ. हम सिलेंडर उठा के सिलेंडर सेट कर सकते हैं. या वही ना, क्योंकि मैंने भी अपने टेन्योर में अभी तक जो भी रहा है मैंने यही नोट करा है. हस्बैंड का बस सुबह ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम करना है, ऑफिस से आना है, फिर फोन पे ऑफिस चल रहा है, फिर शाम को ऑफिस जाना है. नो फैमिली टाइम. घर में कुछ खत्म हो रहा है, कुछ लाना है, पैकिंग करनी है, अनपैक करना है, कोई मतलब नहीं है. हाँ कुछ आप नहीं. हो, आप जैसे मर्जी जो मर्जी करो बस. एक बार तो मेरा ट्रक लोड हो रहा था एंड माय हस्बैंड केम. उनके 2 बक्से वो लेकर आए हैं अपनी गाड़ी में, वो ट्रक में लोड हुआ है. मैंने कहा अब आप बिल पे कर दोगे या वो भी मैं देख लूं. तो सेड नहीं, वो मैं कर दूंगा. तो हम तो वी बीन थ्रू दैट आल्सो. सो ठीक है, बट देन मुझे लगता है वो हमें, दैट इज व्हाट मेक्स अस अस, द इंडिपेंडेंट वंस. The exceptional one. We are the exceptional ones. एग्जैक्टली. मतलब आप हमें अमेज़न के जंगल में खड़े कर दो, वी विल मेक अ वे आउट एंड वी विल, हम 2-4 दोस्ती बना के निकलेंगे वहां से. वी विल नॉट कम आउट अलोन. या हाँ, ये एबिलिटी भी आ जाती है, एक सोशल सर्कल बनाने की यस एबिलिटी. डेफिनेटली. अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप फौज में आके इंट्रोवर्ट रह ही नहीं सकते. True, लाइक very आई एम एन true. इंट्रोवर्ट पर्सन. मैं बहुत जल्दी से नहीं जेलब होती हूँ, बट अब धीरे धीरे लगता है कि नहीं, वो कहीं से आ गया है, अपने आप ही इनकलकेट हो गया है कि यू आर इन फौज, यू कैन नॉट बी एन इंट्रोवर्ट पर्सन. बी डेफिनेटली. एक्सट्रोवर्ट, बी ओपन अप टू एवरीवन. जो आते हैं उनको कंफर्टेबल फील करवाओ, ये अपने आप आ जाता ट्रू, है ना. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आपकी लाइफ का कोई डिसीजन, मेजर बड़ा डिसीजन ऐसा रहा हो जो आपको अकेले लेना पड़ा हो, हस्बैंड अवेलेबल नहीं है ड्यू टू हिज कमिटमेंट्स? आई वुड से मोस्टली सारे व्हेन इट केम टू, बट बहुत है यार. सब कुछ है, बच्चे के एडमिशन से लेके अपनी पढ़ाई, अपना जॉब, सेटलिंग अप द हाउस, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना, एक अनजान से शहर में बाहर निकल के वहाँ की चीज़ों को देखना, अपने रास्ते निकाल के मैनेज. आई वुड नॉट से कि ही वॉज नॉट देयर, बट हमें लगता था कि जब तक हम उस तक पहुँचेंगे हमारा काम हो जाएगा. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंस आई विल टेल यू. इट इज़ नॉट मेजर एज इन मेरे लाइफ से रिलेटेड, बट एक बहुत मेजर इंसिडेंस हुआ था. हम देहरादून में थे एंड अगेन हमेशा की तरह ही वॉज एट अ प्लेस जहाँ फ़ोन बहुत जल्दी नहीं लगता था. एंड माई एल्डर वन 3-3.5 साल का होगा, स्कूल में था. एंड रात में वो खेल रहा था और वो विंडो पैनल होता है ना, सो खेलते खेलते जंप किया एंड उसका सिर लगा नीचे. एंड रात के 12 बजे ब्लड ही ब्लड. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं.
एंड आई वॉज अलोन, और मैं इतने पैनिक में थी, मुझे लगा रात के 1 बजे नेबर का भी बेल बजाऊं ना बजाऊं। ड्राइव मैंने शुरू कर दिया था, बट मुझे लगा इस पैनिक में मैं बच्चे को गोद में रखूं या ड्राइव करूं। और मुझे याद है मैं 2 घंटे उसके कपड़ा लेकर बैठी रह गई थी, डर के मारे कि बस ब्लड रुक जाए किसी तरह से। और मैं डर के मारे लाइट भी ऑन नहीं कर रही थी कि मैं लाइट ऑन करूंगी और मुझे ज़्यादा ब्लड दिख जाएगा तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एंड आई सर्वाइव लाइक दैट टिल 4 in the morning. एंड देन 4 o'clock मैंने अपनी नेबर की बेल बजाई। शी वॉज अ डॉक्टर, तो शी सेड कि घबरा मत, तूने ब्लड रोक दिया है, दिख रहा होगा डीप, बट ही इज़ फाइन, सो तुझे हॉस्पिटल चलना है तो चलते, बट स्टिचेस की ज़रूरत नहीं है। तो तब जाके मैंने पानी पिया है। एंड बच्चे तो बेचारे, वो तो, और मेरा बच्चा बेचारा, मम्मा आप क्यों रो रहे हो, आई एम अ वेरी स्ट्रांग बॉय, देखो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। एंड आई कुड हैव कॉल्ड हिम अप, बट दिमाग में ये चल रहा था कि मैं उसको परेशान करके भी क्या करूँगी। उसको वहाँ से, जहाँ वो पोस्टेड थे, वहाँ से उनको देहरादून आने में 12 घंटे लगते। तो मैंने कहा इट्स नो पॉइंट। जब सब ठीक हो गया तो सुबह 6 बजे आई टोल्ड हिम कि ये सब हुआ था। एंड फोटो, आई डिड नॉट हैव व्हाट्सएप वाला फ़ोन एट दैट टाइम, तो वो बहुत परेशान हो गए कि मैं कैसे देखूँ। सो मेरी नेबर के पास वो ब्लैकबेरी, ब्लू जो भी था, ब्लैकबेरी या बीबी पेन जिस पे चल रहा, हाँ। और एक और फ़ोन होता था मोटरोला या समथिंग का, जिसमें आप फ़ोटो क्लिक कर सकते थे, बहुत हेजी सी पिक्चर आती थी। तो मैंने उससे पिक्चर क्लिक करके आई वाज लाइक, तो ही सेड कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूँगा एंड ऑल। आई रिमेंबर उसके बाद वो छुट्टी आया था, तो फर्स्ट थिंग वी डिड वाज व्हाट्सएप वाला फ़ोन खरीदा था कि बहुत हो गया, एटलीस्ट एक दूसरे को देख तो पाएंगे। वो भी जरूरी होता है। सो ऐसे 2-3 इंसिडेंसेस हुए हैं जब ऐसा लगा कि आई विल गिव अप, बट देन यू टेक योर डिसीजन एट दैट टाइम, इवन दो हाउ स्कैर्ड यू आर, आप कितना भी डरे हो, आपको लगता है अभी पता नहीं कहाँ से वो ताकत आ जाती है। आप बाद में बैठ के सोचते हो तो अभी भी लगता है। आई स्टिल गेट गूजबम्स। एक बार और हुआ था शाम में, व्हेन आई केम होम, एंड बड़े वाले का पूरे ब्लड आ रहा था, एंड ही वाज गिर के आया था कहीं से, एंड माय होल हाउस वाज ब्लड। एंड उस टाइम तो हम गए थे 7 बजे, मेरी नेबर अगेन हु वाज अ डॉक्टर, वो नाइट ड्यूटी पे जा रही थी, उसे गाड़ी में बैठाया, हम गए। एंड आई रिमेंबर मोर देन माय सन आई वाज क्राइंग। और वो एक्सरे और ये सब, मुझे था कि दांत ठीक है, नाक ठीक है, क्या है, 3.5 साल का बच्चा, क्या हो गया। और अगेन आई टोल्ड माय हस्बैंड इन द मॉर्निंग, बिकॉज इट्स नो पॉइंट, आप मतलब वो परेशानी होंगे, वो नहीं आ सकते हैं। सो ऐसे कुछ हैं, इफ़ यू सी, जबकि वो सबसे ज़्यादा आपको इमोशनली ज़रूरत होती है। बट देन जो मैं हमेशा कहती हूँ कि फौज इज़ अ फैमिली। ऐसे लोग आपके पास, मतलब मेरी बिल्डिंग में मेरे अलावा जो 3 लेडीज थी, वो अपने बच्चे घर सबको छोड़ के खड़ी हो गई कि हम चल रहे हैं तेरे साथ। एक की बच्ची खुद 4 साल की थी, उसने अपनी बच्ची को खाना नहीं दिया, एंड शी मेड हर सिट इन द कार एंड शी सेड चलो अभी पहले आंटी को लेके जाएंगे, चोट लग गई है ना भाई को, ऐसे करके। सो उस टाइम लगता है कि मतलब व्हाट अ ब्लेसिंग इट इज। दिस इज अ फैमिली। मुझे लगता है हमारे घर वाले तो हमसे दूर होते हैं, बट यही हमारी एक अपनी फैमिली बन जाती है। ट्रू ट्रू।